Welcome to Coordinate Geometry Part 13. In this part, we are going to discuss angle between two lines. In the previous part, we discussed, means in part 12, we already discussed that, just few minutes, let me review it. Any equation of this type, ax plus by plus c equal to 0, always represents a straight line. Secondly, we discussed if a line makes an angle theta with x-axis in positive direction, if theta is the angle between a line and x-axis in positive direction, then tan theta is called slope of the line and it is written as m. If theta is the inclination of a line with x-axis in positive direction, this is also inclination of the line with x-axis, but this is negative direction, this is positive direction. Positive direction means anti-clockwise direction. Then tan of that angle is called slope of the line. If a line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2, if a line passing through two given point, then slope of the line can be written as difference of their y coordinate divided by difference of their x coordinate. Okay, one result you should know: if there is a triangle and its middle point of its sides are given, suppose this is a triangle and D, E, F are the middle points. Okay, now if you join the middle points, then again there will be a triangle DEF. Now the thing is that centroid of this big triangle, this is suppose ABC, centroid you know, centroid of ABC will be same as centroid of DEF. अगर ABC ट्रायंगल है और DEF उसके साइड्स का मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनेगा. पूरे ABC का सेंट्रॉइड और ये जो बीच में ट्रायंगल बना DEF, इसका सेंट्रॉइड एक ही होगा, दोनों का सेंट्रॉइड सेम होगा. ठीक है. सो इफ मिडिल पॉइंट्स आर गिवन, जैसे कहीं पर मिडिल पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, x3 y3, then what will be the centroid of this bigger triangle? Centroid of this bigger triangle will be same as centroid of this smaller triangle. So same x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. That's also one result. So these things already discussed about a straight line. Okay, ये एक पहले का छूटा था, बता दी. Now come to our today's topic, that is angle between two lines. Here we are going to find angle between two lines. Angle between two lines means we are going to find angle between two lines whose slopes are given. कुछ दिया हुआ रहेगा तब तो. दो लाइन है, उसका स्लोप दिया हुआ है, तो उसके बीच का एंगल हम लोग फाइंड करेंगे इन दिस वे. सी, this is suppose x axis, y axis. There are two lines in this way. Okay, दो लाइन है. दो लाइन के बीच का एंगल तभी निकलेगा जब दोनों इंटरसेक्ट करता. दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल 0. दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल 90, तो फिर निकालने का तो जरूरत नहीं. इफ लाइन्स आर नाइदर पैरेलल nor perpendicular, in that case we are going to find angle between two lines. Okay, मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर को छोड़ के उस केस में तो पता है ऑलरेडी. Let there are two lines which intersect at point O. Okay,
this is one line, this is one line. Let us suppose slope of this line, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, okay? And slope of this line is suppose m2. m1 and m2 are the slope of two lines. We want to find angle between these two lines. तो दो लाइन के बीच में कितने एंगल होते हैं? एक, इधर एक, दो, तीन और इधर एक, चार. These two are same. These two are same. Vertically opposite angles बोलते हैं इसको. And vertically opposite angles are same. So these two are same. So no need to find this. Only this is required. And these two are same. So this is sufficient. So in between two lines, if it is required to find angle, only one angle if you find, other will be 180 minus theta. ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये अपने आप हो जाएगा पाई माइनस थीटा. नहीं तो एक एंगल निकालना ही काफ़ी है, चाहे ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए. ऐसे दो डिफरेंट एंगल्स होगा, एक ये और एक ये. तो लेट m1 m2 are the slope of two lines and theta is the angle between them. Okay. Let us suppose its slope is m1. ये इसका x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा 1, और इसका x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेते हैं थीटा 2 है. ठीक है. लेट थीटा 1 एंड theta 1 and theta 2 are the inclination of two lines having slope m1 and m2 respectively. Okay. Let theta be the angle between them. Okay. We have to find theta. We have taken m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line, and inclination of first line with x axis is theta 1. So m1 will be your tan theta 1 and m2 will be similarly tan theta 2. Is not it? tan theta 1 को ही तो उसका स्लोप बोलते हैं ना, और tan theta 2 को ही उसका सेकेंड लाइन का स्लोप बोलेंगे. अच्छा. ऑल्सो अब जरा देखिए फिगर में, थीटा 1 कैन बी रिटन एज थीटा प्लस थीटा 2. देख के बोलिए. देखिए कोई ट्रायंगल है ऐसे, है ना. ट्रायंगल का एक साइड को अगर बढ़ा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा. ये एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ, ये तीनों इंटीरियर एंगल है, ये दोनों को बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो ये एंगल हमेशा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है. ठीक है. सो यहाँ एक ट्रायंगल है ये. लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. सो दिस एंगल थीटा 1 विल बी इक्वल टू theta plus theta 2. Is not it? So from here we can write theta equal to theta 1 minus theta 2. इधर ले आइए इसको, नहीं क्या, इसको इधर ले आएंगे. theta 1 minus theta 2 equal to
थीटा और थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2. Okay. Now let us see. Here taking 10 both side, taking 10 both side, 10 ले लीजिए तो इधर होगा 10 थीटा और इधर होगा आपका 10 थीटा 1 माइनस थीटा 2. ठीक है. नाउ यूज 10a माइनस बी का फॉर्मूला, त्रिकोणोमेट्री में पढ़े आप लोग. 10a माइनस बी 10a माइनस 10b by 1 plus 10a into 10b. So we use that. So it will be 10 theta 1 minus 10 theta 2 by 1 plus 10 theta 1 into 10 theta 2. ये फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका. जो लोग नहीं जानते हैं उसको कर लीजिए, त्रिकोणोमेट्री जो लोग नहीं किए. 10a माइनस बी आपको याद रखना है 10a माइनस 10b, नीचे होता है 1 प्लस 10a into 10b. This is the formula of the difference of, this is the formula for the tangent of difference of two angle. 10a minus b, 10a minus 10b by 1 plus 10a into 10b. ठीक है. So here we use that formula only. Okay. Ten theta 1 minus theta 2 here. So 10 theta 1 minus 10 theta 2 by 1 plus 10 theta 1 into 10 theta 2. Okay. Now 10 theta 1 can be written as m1 minus 10 theta 2 m2 by 1 plus 10 theta 1 m1 into m2. Is not it? Because 10 theta 1 can be written as m1, 10 theta 2 can be written as m2. So we have written m1 m2 in place of 10 theta 1 and 10 theta 2. So what we are getting, if theta is the angle between two lines having slope m1 and m2, then 10 theta can be written in term of their slopes m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. दो लाइन का सिर्फ स्लोप दिया हुआ था ना m1 और m2, हमको उसके बीच का एंगल निकालना है थीटा. तो 10 थीटा का वैल्यू m1 और m2 के टर्म में ही निकालना है. तो m1 और m2 के टर्म में होगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. वेयर इज थीटा? बस ये एंगल है थीटा. तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा? एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा पाई माइनस थीटा होगा. ऑल्सो दूसरा एंगल का अगर आप 10 निकालना चाहेंगे, 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा. ये भी त्रिकोणोमेट्री में पढ़े हैं. 10 पाई माइनस थीटा, इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट. सो इन सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस 10 थीटा. सो इफ 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा, देन माइनस 10 थीटा, 10 theta means this value m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. So if theta is the angle between two lines having slope m1 and m2, then tan theta is m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. For the second angle, minus m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. देखिए दो लाइन के बीच में दो ही डिफरेंट एंगल होता है. तो एक एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू प्लस में होता है, ये दूसरे एंगल के लिए माइनस में. क्यों? क्योंकि ये दोनों में एक 90 से छोटा होगा तो दूसरा 90 से बड़ा होगा. क्योंकि दोनों को हम लोग 90 नहीं ले रहे हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं लिए हैं लाइन को. तो ये अगर 90 से छोटा है तो ये 90 से बड़ा होगा.
ये 90 से बड़ा है तो ये 90 से छोटा होगा। फॉर द एंगल विच इज लेस देन 90, टेन थीटा का वैल्यू है ना, थीटा अगर 90 से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो जो सेकंड एंगल होगा वो ऑब्वियसली 90 से बड़ा होगा, जैसे एक 30 है तो दूसरा 150 हो जाएगा ना, तो दूसरे के लिए नेगेटिव होगा, सेम वैल्यू रहेगा नेगेटिव होगा। ठीक, तो दो एंगल है इसलिए एक के लिए पॉजिटिव आता है, दूसरे के लिए नेगेटिव आता है। एक्चुअली ये पॉजिटिव है उस एंगल के लिए जो 90 से छोटा है फॉर इक्विट एंगल, एंड दिस इज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा जो 90 से बड़ा है। 10 ऐसे दोनों को मिला के लिखेंगे। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स देन टेन थीटा, टेन थीटा मतलब यहां स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कौन सा, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई हो, तो टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस दो वैल्यू आएगा, प्लस फॉर द एंगल लेस देन 90 एंड माइनस फॉर द एंगल मोर देन 90। तो प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 into m2 is the formula for finding the angle between two lines whose slopes are given। दो लाइन का अगर स्लोप दिया हुआ है m1 और m2 तो उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू होगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, एक इनवर्स चैप्टर भी पढ़ते हैं आजकल, वो 12th में कर दिया है वो चैप्टर, 11 का प्लेलिस्ट में जाके वो इनवर्स चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं, किया हुआ त्रिकोणोमेट्री में इनवर्स चैप्टर बताया हुआ है। थीटा इक्वल टू इधर लिखते हैं टेन इनवर्स हो जाता है ना, ऐसा जैसे टेन थीटा इक्वल टू कोई x है तो थीटा इक्वल टू लिखा जाता है इसको टेन इनवर्स, ऐसे टेन इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। आप इतना याद रखें कि इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम देन टेन थीटा इज गिवन बाई प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, दोनों लेंगे प्लस और माइनस क्योंकि दो एंगल है, ठीक है। 90 से छोटा वाला के लिए प्लस है और 90 से बड़ा के लिए माइनस है, तो ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है समझे। अच्छा, अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 मीन्स लाइन्स आर कॉन्साइड्स और यू कैन से पैरेलल, कॉन्साइड करने से भी पैरेलल होगा, दैट इज इसका मतलब है लाइन्स आर पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, यहां थीटा की जगह पर 0 बैठाइए, टेन 0 एंड दिस साइड प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन 0 डिग्री इज 0, ये 0 होगा है ना, और टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 10, सो प्लस माइनस m1 माइनस m2 इक्वल टू सिंपली 0 हो जाएगा, इसके जगह पर 0 लिखिए। सो प्लस और माइनस वॉट एवर में बी इट विल गो टू दैट साइड एंड बिकम्स 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट m1 इक्वल टू m2। So you must remember, if two lines are parallel, that is angle between them is 0 degree,
then m1 must be equal to m2. m1 m2 are the slope of the lines. तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, और ये इधर से भी ट्रू होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर ऐसा है तो फिर ये होगा, और ये है तो फिर ये होगा. So if two lines are parallel, their slope equal. If slope equal, line must be parallel. It is true from both sides. Also, if theta equal to 90 degree, that is lines are perpendicular. Perpendiculars. Then what will happen? यहाँ थीटा के जगह पर 90 बैठाइए, तो 1090 इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. थीटा के जगह पर 90 बैठा दिए, है ना. तो क्या होगा, अब इसको मिटाते हैं. टेन नाइनटी होता है इन्फिनिटी, है ना. इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1/0. एनी नंबर बाय 0 इज इन्फिनिटी. सो 1090 इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज रिटन एज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये ऊपर वाला पूरा प्लस माइनस के साथ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा. मीन्स 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट m1 इंटू m2 इक्वल टू, ये 1 को उधर ले जाइए तो -1 आएगा. दिस इज द रिजल्ट. What is this result? m1 into m2 means product of their slope is equal to -1. So if two lines are perpendicular to each other, product of their slope must be -1. And conversely, if product of their slope is -1, then the line must be perpendicular to each other. तो आपको ये जानना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो फिर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे. तो ये दोनों रिजल्ट आपके लिए बहुत काम का है. और दो लाइन का स्लोप अगर m1 और m2 है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो 10 थीटा लिख सकते हैं प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. So this was very important result for you. Now let us see few problems based on these results. ये जो अभी पढ़े रिजल्ट, इसके ऊपर कुछ सवाल बनाया जाए. देखिए, लिखने का समय नहीं दिया जाता है क्योंकि आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. इसलिए लिखने के लिए अलग से टाइम अलॉट नहीं किया जाता है. इसको भी मिटाते हैं. Let us see few suitable example to understand these results. एक आध सवाल बुक से लेते हैं. एक सवाल लिखिए. Find the angle between the lines. Find the angle between the lines joining the points joining the points 0 0 2 3 0 0 2 3 and 2 minus 2 2 minus 2 3 5. This is your question.
ओके। What is the question? Find the angle between two line. ऐसा दो लाइन है, ऐसा इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक लाइन जो है वो 0 0 और 2 3 को ज्वाइन करता है, और दूसरा लाइन फिर से ले लीजिए 2 -2 और 3 5 को ज्वाइन करता है, ऐसा। इसके बीच का एंगल निकालना है, लेट अस सपोज थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। इफ m1 and m2 are the slopes of the lines, मान लेते हैं कि उनका स्लोप है m1 और m2, तो m1 क्या होगा, m1 ले लीजिए, इसका स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट 0 -3 बाय डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट 0 -2 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन डिफरेंस ऑफ देयर, जिधर से लीजिए, दिस माइनस दिस कीजिए या दिस माइनस दिस कीजिए, एक ही बात है। 3 -2 आप लिख लिए 3 -2, तो नीचे होगा 5 -2, 5 -2 प्लस, तो ये हो गया 1/7। सो 3/2 एंड 1/7 आर द स्लोप ऑफ द लाइन। उसके बीच का एंगल थीटा लिए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन tan थीटा प्लस माइनस m1 - m2 by 1 plus m1 into m2, m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रन दीजिए, प्लस माइनस एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 14, यहाँ होगा 21 माइनस 2, एलसीएम हो जाएगा 14 ना, तो 7 3 जा 21 और 14 7 2 जा 14 ना, तो ओके 2। यहाँ भी एलसीएम होगा 2 इंटू 7 14, यहाँ हो जाएगा 14 + 3, ठीक है ना। ओके, सो ये कितना होगा, प्लस माइनस 19/17। तो ये कोई एग्जैक्ट एंगल तो आया नहीं, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू तो आया नहीं जिसका स्टैंडर्ड एंगल मालूम हो। जैसे ये 1 आता तो थीटा हो जाता 45 डिग्री, ये अगर 1/√3 आता तो थीटा हो जाता 30 डिग्री, ये 1/√2 आता तो ये हो जाता 60 डिग्री, इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट वो वैल्यू तो आया नहीं जिसका स्टैंडर्ड एंगल मालूम हो। तो इतना ही आंसर करेंगे हम लोग। tan थीटा इक्वल टू दिस, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं आप, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर दीजिएगा। इनवर्स को डिटेल से इनवर्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। tan इनवर्स करके वो वैल्यू लिखिएगा, 19/17 इज द आंसर। लेट मी सी द आंसर, इट्स हाउ मच। हाउ डेज, देखिए यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा, इसलिए आंसर नहीं आया है इसका। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं और चेक कीजिए कहाँ गलत हुआ। यहाँ गलत हुआ m2 निकालने में। m2 कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप है ना, डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट होता है ना, ऊपर डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट होता है, ये है ना y कोऑर्डिनेट, ये उल्टा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट ये 5 - 2, इसका डिफरेंस लीजिए 5 - -2, ये 3 - 2, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है।
y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 होता है ना स्लोप, इसको ठीक से कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 7/1, 7 विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, नाउ tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। करेक्ट कर लिए तो इसको कर लीजिए। देखिए एलसीएम होगा 2 और ऊपर होगा 3 माइनस 14 है ना, 3 माइनस 14 डिवाइडेड बाई, यहां भी एलसीएम होगा 2, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 21, एलसीएम तो कट जाएगा ना 2 ओके। जरा यहां ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस 11 बाई 23। ओके, यहां एक चीज बड़ा ध्यान से देखिए, आगे में है आपका प्लस और माइनस। जब आप ये प्लस लेंगे तो माइनस रहेगा, जब माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आप 11/23 भी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ माइनस हो प्लस हो गया, प्लस के केस में फिर माइनस, मीन्स प्लस माइनस 11/23। ठीक है, तो यहां से हम लोग थीटा इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। प्लस माइनस उसको आप माइनस प्लस लिख लीजिए, बात एक ही है ना। तो जैसे माइनस है, एक बार आप प्लस लीजिएगा तो माइनस 11/23 आएगा एक वैल्यू, एक बार माइनस लीजिएगा तो फिर प्लस 11/23 आएगा, है ना। वही प्लस माइनस 11/23 आपका आना है आंसर। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। लेट मी सी, यस, नाउ आंसर इज ओके। सो अंडरस्टूड दिस, लेट अस सी फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। यहां कंफ्यूजन नहीं हुआ ना। आप एक बार प्लस ले लीजिए, कितना आएगा माइनस 11/23। फिर एक बार माइनस ले लीजिए, आएगा माइनस 11/23। सॉरी, एक बार प्लस लीजिएगा तो माइनस 11/23, फिर माइनस लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 11/23। तो माइनस प्लस 11/23, उसको प्लस माइनस 11/23 लिख लीजिए, एक ही है ना। Let us see one more problem. Second question is, if angle between two lines, if between टू लाइन दी कर लीजिए, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, एज π/4, π/4 means 45 degree. It is written in radian. You must go through trigonometry. And slope of, and the slope of, and the slope of one of them, slope of one of them is 1/2, is 1/2. Find the slope of the other line. Find the slope of the other line. This is what is your question. If the angle between two lines,
दो लाइन है, इसके बीच का एंगल है π/4, दिस इज π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, इसमें से एक का स्लोप जो है 1/2 है। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर, दूसरा लाइन का स्लोप निकालना है। लेट अस सपोज m बी द स्लोप ऑफ अदर, तो ये m1 m2 हो गया, एक हो गया हाफ, दूसरा हो गया m। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज m, देयरफॉर उसके बीच का एंगल है π/4, तो आपका होगा 10 π/4, tan थीटा इक्वल टू द m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो दिस इज इन प्लेस ऑफ m1 एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ m2। आप इसको m1 इसको m2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, साथ में प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। आप इसको लेंगे m माइनस 1/2 1 प्लस m इंटू 1/2, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। हम इसको m1 इसको m2 लिए ना, आप इसको m1 इसको m2 लीजिएगा तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 π/4 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ माइनस m बाई 1 प्लस हाफ इंटू m। 10 45 डिग्री इज 1 प्लस माइनस हाफ माइनस m बाई 1 प्लस हाफ इंटू m। ओके, so take it equation number 1. From here we have to calculate the value of m. Once we take plus sign and find the value of m, again we take minus sign and find the value of m. एक बार प्लस एक बार माइनस लेके m का वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू निकलेगा m का। टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, पॉजिटिव साइन, देन ये प्लस साइन हम लोग लेंगे, तो क्या होगा 1 इक्वल टू हाफ माइनस m बाई 1 प्लस हाफ इंटू m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1, अच्छा चलिए ना ये एलसीएम 2 ले लीजिए, अच्छा चलिए इसको लिख लीजिए 1 प्लस हाफ m इक्वल टू हाफ माइनस m। ओके, सो एलसीएम 2 ऊपर होगा 2 प्लस m इक्वल टू 1 माइनस 2m, दोनों का नीचे नीचे 2 कट जाएगा, ये m को इधर ले, 2m को इधर ले आइए, 3m इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, सो m इक्वल टू माइनस 1/3। ओके, पॉजिटिव साइन लेके हुआ m का वैल्यू माइनस 1/3। नाउ वी टेक नेगेटिव वैल्यू, यहां तक मिटाते हैं। टेकिंग negative sign, then 1 इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन लेंगे, माइनस आगे में रहेगा, हाफ माइनस m बाई 1 प्लस हाफ इंटू m, ये आगे में माइनस रखे, ठीक है। तो माइनस रहने से ये जो है ना इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से आगे तो इसको ब्रैकेट कर लीजिए, आगे प्लस रहता है तो ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, इसका साइन चेंज कर लीजिए, ये होगा माइनस हाफ प्लस m बाई 1 प्लस हाफ m, समझ गए। नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इंटू होगा 1 से, 1 प्लस हाफ m इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस m, LCM 2, so 2 plus m, here minus 1 plus 2m, नीचे का 2 कट जाएगा, ठीक है ना।
सो ये -1 को इधर ले आइए 3 और m को उधर ले जाइए 2m माइनस m, सो m इक्वल टू 3 है ना। सो देयरफॉर देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ m, एक हुआ 3 और दूसरा है -1/3, -1/3 आर दी 2 वैल्यूज ऑफ m। ओके, इस तरह से m का 2 वैल्यूज निकलता है, -1/3 एंड 3। ओके, नाउ 2 minutes more you see one very important result, hardly 2 to 3 minutes it will take, and then we complete this video. Okay, so that the topic will be completed. Angle between two lines. See, this is very important result. Okay, x axis, y axis is there. This is x dash and this is y dash. This is origin. If there is a line parallel to x axis के parallel अगर कोई line है and which is at a distance k फ्रॉम एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ डिस्टेंस पर होगा ना, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। तो सपोज एट ए के डिस्टेंस देयर इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है और इसका हाइट हमेशा k है। So for each and every point of this line y coordinate is k, so y equal to k will be the equation of the line. समझिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए y equal to -3, it means this is a line. y equal to -3 means this is a line parallel to x axis. ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और x एक्सिस से -3 डिस्टेंस पर होगा। -3 डिस्टेंस मीन्स 1 2 दिस साइड -1 -2 लेंगे ना नीचे, -1 -2 -3। इन दिस वे देयर इज अ लाइन, दिस लाइन इज योर y इक्वल टू -3 which is parallel to x axis and is at a distance -3 from x axis. समझ गए बात? Similarly, if there is a line which is parallel to y axis and is at a distance k from y axis, अगर y axis के पैरेलल है और y axis से k डिस्टेंस पर है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू k. It means if a line is parallel to y axis and is ये y axis है and is at a distance k, then for each and every point of the line x coordinate is always k. हर एक पॉइंट का x coordinate k होगा इस लाइन का. So x equal to k will be the equation of the line itself. जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x equal to -5. What does it mean? X equal to -5 means it is a line parallel to y axis. ये y dash का पैरेलल एक लाइन है जो -5 डिस्टेंस पर है. इधर ये डिस्टेंस आपका इधर बैक साइड -5 हुआ, ठीक है. ये लाइन होगा आपका x इक्वल टू -5 बैक साइड. x इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2. ये लाइन हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2, ये डिस्टेंस 2 होगा. समझे बात? ये ओरिजिन है. So this you must understand. If a line is parallel to y axis at a distance k, its equation x equal to k. If a line is parallel to x axis at a distance k, then its equation y equal to k. Okay, and according to this result only,
we can say this is x x dash, this is y y dash. Okay, this is origin. What will be equation of x axis itself? x axis itself is a straight line. ये खुद भी तो एक लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा? x एक्सिस के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है. सो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इटसेल्फ. x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है और ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस y coordinate is 0, so its equation y equal to 0. Similarly, what will be equation of y axis? X coordinate of each and every point of y axis is 0. ये y axis के हर एक पॉइंट का x coordinate 0 आएगा. So x equal to 0 is the equation of y axis itself. समझ गए बात? Equation of x axis equation of x axis y equal to 0, equation of y axis x equal to 0, क्योंकि y axis के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x equal to 0. समझ गए बात? सो इन दिस वे वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ x axis, इक्वेशन ऑफ y axis, इक्वेशन ऑफ a line parallel to x axis, equation of a line parallel to y axis, angle between two lines whose slopes are given. If theta is the angle between two lines whose slopes are m1 and m2, then tan theta is plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. If lines are parallel, their slopes must be equal. If lines are perpendicular to each other, product of their slope must be equal to minus 1. अगर दो लाइन है उसका स्लोप m1 और m2 है और दोनों पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होगा. दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स in this video. Thank you for watching.